نعرہ میرے بھائی تقریر کرنے کے لیے ہمارے مہمان بیٹھے ہیں، آپ بیٹھ جائیے مہربانی کرم ہوگا آپ کا۔ فوراً تشریف رکھیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ منبر رسول پر آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، وہ شہزادے کیا بات، حضور شاہ عالم ربانی پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضور الشاہ سید بابو حضور صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ و مقدس علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداء بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ قال الله تعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، عزیزو، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ کا شکر ہے اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ منبر شریف پر بڑی بڑی عبقری شخصیتیں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت جو آل رسول ہیں اور ایک جید عالم بھی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے علاقے میں یو پی میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا علماء سب نام جانتے ہیں، اگر وہاں پر 1-2 سال بھی اگر کوئی بندہ رہ لیتا ہے تو اس کو اتنی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ الحمدللہ پھر وہ کہیں مار نہیں کھاتا ہے۔ بے شک۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت آل رسول تو ہے ہی ہیں، یہ تو شرف ہے،
मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 2 नंबर से गालिबन फारिग भी अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक मुबारकपुर शफिया से जी। इस फ़कीर ने भी कुछ दिनों वहाँ की दाल खाई और जिस पे हुजूर हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान बरसता है ना, तो ये पीर हैं मगर और पीरों से नुमायाँ हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में अगर पीरों पर नज़र मारेंगे तो कुछ पीर ऐसे हैं जो शरीयत में तबीयत को मिला देते हैं और वो वहीं पे मार खा जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी का नवासा, अली का शहज़ादा जो बाबू हुजूर की शक्ल में मौजूद है, हर सूरत शरीयत को मुक़द्दम रखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा भी यहाँ पर जलवागर हैं जो बहुत सीनियर हैं, कुछ मंजर इस्लाम में पढ़े, कुछ जामे नईमिया में पढ़े, कुछ मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब क़िबला के, कुछ ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब के पास, इन बड़े बड़े उलमा के पास मैं एक छोटा सा हज़रत की इजाज़त से यहाँ बैठ गया हूँ। अब मुझे इन सब के नाम भी याद नहीं है, सिर्फ़ एक शायर साहब, इनसे स्टेज पे मुलाकात होती रहती है, जो अख्तर परवाज़ हबीबी हैं, बहुत अच्छा कलाम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, इनका नाम, मगर औरों का नाम याद नहीं है। अब मैं क्या करूं, तारुफ़ कैसे कराऊं? नाम मुझे भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान ज़रूर याद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यारो, एक बात बताइए आप, अगर मैं किसी की तारीफ़ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप अगर किसी की तारीफ़ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे आका अगर किसी की तारीफ़ कर दें तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। क्या बात। ये इदारे की तरफ नज़र रखें। और मिंबर शरीफ पर देखें, आका फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। बोलो प्यारे, क्या करना? एक मर्तबा देखना। कौन फरमाते? आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। उलमा है और आप आलिम भी हैं, फिर आले रसूल भी हैं। अल्लाह आका फरमाते, आले रसूल की बात आ गई तो सुनो, फरमाते हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आले रसूल से एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। जरा तवज्जो रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल गिबादह क़िल्लतुत ताम वल क़ूत फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। क्या बात। कितनी प्यारे, बोलो 5 चीजें। अब सबक नबी ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। कोई मदरसा हिंदुस्तान में ऐसा है जिसमें 35 साल के 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो? कोई मदरसा नहीं। फिर कहाँ इल्म हासिल करेंगे? ये जो जलसे होते हैं ना, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो, बेशक मदरसा बना लिया करो। वक्त कभी भी हंसी ठिट्ठे मजाक इधर उधर की बातों में ना गुजारा करो, बल्कि यहाँ आए थे तो गुनाहगार थे और यहाँ से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके गए।
नबी अब मैं सबक शुरू करता हूं, जरा तवज्जो रखना उलमा, जय्यद उलमा यहां पर इंशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। मैं वालों जरा ध्यान रखना, आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में सुस्ती नहीं होगी। मगर मुसलमान बस घर बैठे जन्नत ले लेता है। मस्जिद जाते हो, नारे इतने लगेंगे, मगर मस्जिद 8वें दिन जाकर के भागता है। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, खाली बैठना। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह और तहलील भी ना करे, कलमा कलाम भी ना पढ़े, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में जितनी देर बैठेगा और उस बैठने पर जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला हर सांस के बदले उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कभी 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है ही है, कभी नमाज के अलावा जब वक्त मिला तो वुजू बना करके मस्जिद में जाकर के बैठे, चौराहों पे बैठेगा गप्पे मारने के लिए, तेरी मेरी गीबत करने के लिए। फिर देखो कैसा कहता जाहिल मुफ्ती बन के आएगा, इधर की उधर लगाने के लिए। और अगर थोड़ी शराफत है तो चौराहे पे नहीं भी गया, 3 भाई अगर एक सोफे पर 3 कुर्सी वाले पे बैठे तो तीनों एक दूसरे की खैरियत नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, तीनों अपना अपना मोबाइल निकालेंगे और बस मोबाइल में लग जाएंगे। अल्लाह, जब मैं यहाँ आया, अब सुनो, क्योंकि मैंने कहा ना ये सबक है, सबक पढ़ के जाना, ये मदरसा एक रात का। जब मैं यहाँ आया तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना हटाना पड़ रहा था, पूरे रोड पर लड़की लड़के, वो खलत मलत, वो इख्तिलात था लड़की लड़कों का कि मत पूछिए। आप जानते मस्जिद में जाने से औरतों को क्यों मना किया गया? नमाज पढ़ने के लिए। क्या नमाज पढ़ना मना है? क्या मर्द ना हो उसके अलावा किसी औरत को अगर पाक है तो क्या मस्जिद में जाना मना? मस्जिद में जो रोका गया इसीलिए से रोका गया ताकि मर्दों और औरतों में इख्तिलाफ ना हो। जो नमाज फर्ज है, इबादत है, उसमें जाने के लिए रोक दिया गया। तो यहां इख्तिलाफ में फिर तुम्हें इजाजत कौन देगा? क्या बात है। मगर सुनो, गौर करो, आज हमारी बच्चियां, आपकी लड़कियां इतना दुपट्टा नहीं संभाल रही है जितना मोबाइल संभाल के रख रही है, अपना मोबाइल संभाल के रख रही है। कहीं पर भी जलसा देखे या उर्स देखे, ऐसा लगता है कि औरतों की भीड़ शुरू हो गई। वो फैशनीले कपड़े पहन लिए, बाल आगे को डाल लिए, पीछे को डाल लिए, मेकअप कर लिया और मोबाइल हाथ में लिया और अब एक दूसरे से टक्कर मारने चली। बोलो है कि नहीं ऐसा? मगर इतना पूछूंगा आपसे, ये जो लड़कियां सब मेले में आई हैं, मुझे लगता है ये तो आसमान से सब गिर गई होंगी, एकदम अमेरिका से आई होंगी, एम्स्टर्डम से आई होंगी, यूरोप से आई होंगी, कहीं दूसरे देश से, मुल्क से आई होंगी। कौन है ये? हमारी आपकी बेटियां। किसकी बच्चियां आई है? अरे किसकी बच्चियां? हमारी आपकी बच्चियां। तो दुपट्टा इन्हें कोई मुफ्ती उड़ाएगा?
کوئی عالم اڑائے گا, پیر صاحب اڑائیں گے, نقیب صاحب اڑائیں گے, پڑوسی اڑائے گا. کیا بات. کس کی ذمہ داری ہے سر پہ آنچل رکھنے کی؟ تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. کتنا بچا رہے ہو ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیو. بس ایک نعرہ لگا دیا کسی مولانا نے کہہ دیا بڑا جنتی آدمی ہو گئے جنتی. 500 روپے دے دیے کسی نے تعریف کر دی ہو گیا کم. جلسے میں کھڑے ہو کر کے نعرے لگا دیے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے وہ نہیں چھوڑیں گے, ان کا دامن نہیں چھوڑیں گے ان کا دام, ہو گیا. عشاء کی نماز کا پتہ کہاں تھی؟ مغرب کی نماز کا پتہ کہاں تھی؟ فجر کا پتہ کہاں تھی؟ ظہر اثر کے بارے میں معلومات رکھتے ہو؟ آج ذرا دیکھ لو یہاں سے یہاں تک یہ کسی غیر کی بیٹیاں نہیں ہے, مسلمانوں کی ہے. صحیح بات. اور یہ ہماری تمہاری بے شک بے شک. باہر سے نہیں آئے, مگر آج ایسی حدیث سنا کر کے جاؤں گا, لڑکیوں کو نہیں لڑکوں کو نہیں, یہ ماں باپ کو ایسی حدیث سنا کر کے جاؤں گا کہ ان کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اگر ذرا بھی شرم ہوگی تو یہ اپنے اوپر غور کریں گے